Hello everyone, this is Ishita here and you are watching Lawphile. Today in this video, I'm gonna give you a quick intro about this channel. In this channel, we will be mainly discussing in the very first series about Constitution of India, which is a subject of paramount importance for all the law students as well as civil services aspirants. So it becomes more important to go into the depth of this subject. Let's not wasting much time about the intro. Let's move to the very first topic of this video series, which is what is meant by constitution, constitutionalism, and constitutional law. We will also learn the difference between two terms, law and constitutional law. So let's move to the topic. What is meant by constitution? Constitution क्या होता है? We will look at the definition of constitution which is provided here. A constitution means a document having a special legal sanity which sets out the framework and the principal functions of the organs of the government of a state and declares the principles governing the operation of those organs. To understand this definition, we will divide it into parts. A constitution means a document. Here we will highlight this word document. Document से यहाँ क्या मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो रिटन फॉर्म में है. When we are talking about Indian Constitution, whereas कई जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी होता है, like Constitution of Britain, but हमारा रिटन फॉर्म में है. That's why we are calling it as a document. Secondly, having a special legal sanity. It means constitution of any country is supreme, sovereign and fundamental law of the land. मतलब किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उसका सबसे बड़ा लॉ होता है. बाकी सभी अदर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो करते हैं एंड दे कैन नॉट ओवररूल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसको ही हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशल लीगल सैनिटी बोलते हैं, which means constitution will be the supreme law and other laws are subordinate to it. Clear? Thirdly, constitution sets out the framework and the principal functions of the organs of the government. Framework means constitution जो है वो एक frame means boundaries बनाता है कि जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं वो विद इन दिस बाउंड्री ही वर्क करेंगे और इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते. अदरवाइज अगर वो इस बाउंड्री को क्रॉस कर कर कोई काम या कोई एक्ट करते हैं देन द गवर्नमेंट विल बियर द पेनल्टीज ऑफ दैट एक्ट. क्लियर? नाउ फर्दर इट टेल्स द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने बाउंड्री तो तैयार कर दी कि इस बाउंड्री के अंदर काम किया जाएगा, पर साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बताया कि इस बाउंड्री के अंदर क्या क्या फंक्शंस रहेंगे किन किन ऑर्गन्स के. फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर का फंक्शन हो गया लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन हो गया लॉ को इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का फंक्शन हो गया लॉ को इंटरप्रेट करना. तो ये बात हमें कहाँ से पता लगती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से. वहां पर ये सारे प्रोविजंस हमारे प्रोवाइडेड हैं in different articles. Lastly, Constitution also declares the principles governing the operation of those organs. It means it will not merely tell कि legislature का काम law बनाना है, बल्कि legislature कैसे काम करेगा यानी कैसे ऑपरेट होगा वो सारे principles भी हमारे Constitution में provided हैं. So, this is all about the definition of Constitution. I hope it is clear to you all. Now, we will point-wise refer to the purposes which a constitution is intended to serve. A constitution is intended to serve many purposes, the important of which are defined here. It defines the scope of the government power. It means कि कितनी power government और उसके organs को मिली है, means authority कितनी है government की किसी एक्ट को करने की या किसी एक्ट को ना करने की. तो दोनों ही बातें यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता लगती है. फर्स्टली पावर्स गवर्नमेंट की एंड सेकेंडली limitation imposed on
those powers of the government. So ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्कोप ऑफ गवर्नमेंट पावर. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, इट encapsulates ideology, values and principles. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इनकॉर्पोरेटेड होता है? हमारा आइडियोलॉजी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स. इस पॉइंट को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक बार प्रियम्बल को याद करते हैं. प्रियम्बल में आप लोगों ने ये वर्ड्स सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक पढ़े हैं ना? तो ये जो वर्ड्स यहाँ मेंशन्ड हैं, यही वर्ड्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की आइडियोलॉजी बताते हैं. आइडियोलॉजी का मतलब व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, दैट व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी they want to establish. So by incorporating the words like sovereign, socialist, secular, democratic, republic, our constitution maker showed their ideology that what kind of society they want to establish. अब आते हैं वर्ड वैल्यू पे. इस वर्ड का एग्जाम्पल हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम अपने प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी वर्ड को रीड करते हैं. उस वर्ड को रीड करने से हमें ये पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या वैल्यू स्टैब्लिश करना चाहता है हमारी सोसाइटी में. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या वैल्यू स्टैब्लिश करना चाह रहा है? फ्रेटर्निटी की वैल्यू अमंग इट्स सिटीजन्स, भाईचारे की वैल्यू. नाउ प्रिंसिपल वर्ड को देखते हैं. तो प्रिंसिपल वर्ड हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इसका रिफ्लेक्शन मिलता है? जहां पर प्रियम्बल में ये मेंशन्ड है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी होगा सभी के लिए. तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो इक्वालिटी का प्रिंसिपल स्टैब्लिश करना चाहता है अमंग ऑल द सिटीजन्स. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. ओवरऑल ये सारी ही बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन्ड है. थर्डली, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स डिफाइन करता है, बल्कि इट हैज प्रोविजंस फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑल्सो. आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर करता है हर उस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो. और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जाने के लिए एम्पावर करता है हर उस पर्सन को जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो. सो दीज टू आर्टिकल्स, that is article 32 and article 226 of constitution are providing protection to our fundamental right. So ये हो गया third main purpose of the constitution. Now coming to the fourth purpose. Constitution lays down the procedure as to how the government will be constituted and the manner in which decisions are taken. Government कैसे फॉर्म होगी, कैसे इलेक्शंस होंगे और इलेक्टेड गवर्नमेंट किस मैनर में अपना वर्क करेगी, ये सारी बातें इनकॉर्पोरेटेड है इन डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सारी बातें भी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट प्रोविजन से पता चलती हैं. सो इट्स ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स मेन पर्पसेस. Now moving to the next topic. What is meant by constitutionalism? Constitutionalism is the principle that requires that all the government actions must compile with the constitution. Constitutionalism क्या बताता है कि गवर्नमेंट सिर्फ वही एक्शंस लेगी या ले सकती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में मेंशन्ड हैं. यानी गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में मेंशन ना हो. इट मींस कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट की ऑथोरिटी से बाहर आता हो. नो ऑथोरिटी कैन एक्ट आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिंपली मींस दिस. सो बेसिक फंक्शन क्या हुआ इसका? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली मींस keeping a check on government power and restraining it ताकि अनकंट्रोल्ड ना हो गवर्नमेंट की पावर और
गवर्नमेंट कोई भी एक्शन आर्बिट्रली मतलब अपने मनमानी से कोई भी ऐसा एक्शन ना ले पाए जो कि पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट हो। सिंपली कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब यही है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, सॉरी। सो इन एसेंस अगर हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या एस्टैब्लिश कर रहा है? लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट, और एक ऐसी गवर्नमेंट जिसकी लिमिटेड पावर्स हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म connoted in essence limitation on the government or a government of limited power. This is all about constitutionalism. Now moving to the third topic. What is meant by constitutional law? Constitutional law is a body of law which regulates the structure of the principal organs of the government, namely the executive, the legislature, and the judiciary, and their relationship to one another, and determines their principal functions also. अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया तो इसको समझना हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक ऐसी बॉडी ऑफ लॉ है जो हमें बेसिकली क्या बताता है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर हम अपने इंडियन कंटेक्स्ट में इसको देखें तो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है? बाइकैमरल, यानी इट हैज टू हाउसेस, लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो ये बात हमें कहाँ से पता लगती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन से, वहां पर ये मेंशन्ड है। एंड नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जीक्यूटिव इन आवर कंट्री। एग्जीक्यूटिव का हमारा स्ट्रक्चर क्या है? दैट वी हैव प्राइम मिनिस्टर एट द सेंट्रल लेवल एंड द चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल। तो ये बात भी कहाँ मेंशन्ड है, कहाँ लिखी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में, कि स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर एक्ट करेगा और सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर एक्ट करेगा एज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। सो नाउ मूविंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा है? वी हैव सुप्रीम कोर्ट एट द सेंट्रल लेवल एंड वी हैव हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल्स। तो ये भी कहाँ मेंशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस में। सो ये सारा स्ट्रक्चर और ये सब बातें हमें कहाँ से पता लगती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ कमिंग अब हमारे स्ट्रक्चर तो पता लग गया इन सारे ऑर्गन्स का। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन ऑर्गन्स की आपस में क्या रिलेशनशिप है ये भी बताता है। लाइक लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से कैसे रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से कैसे रिलेटेड है, एंड सो ऑन। तो ये एक अनदर एक्सपेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमें बताता है। एंड लास्टली इन सभी ऑर्गन्स के, इन तीनों ऑर्गन्स के प्रिंसिपल फंक्शंस क्या है, ये भी हमें कहाँ से पता लगता है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगता है। सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेजरली टेल्स अबाउट गवर्नमेंट, देयर ऑर्गन्स, देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शन and the relationship between them. So this is all about the definition of constitutional law. Now let's move to the next topic. What is meant by law? So the definition of law says that law is a set of statutes, acts, decrees, orders, bylaws, rule, regulation, notification, custom or usage which regulates the actions and activities of the citizens and persons within the territory of the country. So, law क्या है? Law is a set of statutes and acts. Statutes and acts का क्या meaning है? Both have same meaning. It means a law passed by the legislature. यानी कि जो भी law legislature के द्वारा पास किया जाता है उसको जनरली क्या बोलते हैं? या तो statute या act. For example, रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, तो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट ने पास किया था, तो उसको हमने क्या बोला? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? नाउ कमिंग टू द वर्ड्स डिक्री और ऑर्डर। डिक्री और ऑर्डर दोनों का ही मतलब इस डेफिनेशन के अंदर क्या है? एन ऑफिशियल स्टेटमेंट विच हैव फोर्स ऑफ लॉ,
यानी डिक्री और ऑर्डर की डेफिनेशन क्या हुई? एन ऑफिशियल स्टेटमेंट विच हैव फोर्स ऑफ लॉ, मतलब कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जो लागू होने के योग्य हो, यानी कि कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसको हम एनफोर्स करवा सकते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज डिक्री और ऑर्डर. ठीक है. डिक्री एंड ऑर्डर आर जनरली पास बाय एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. ठीक है. डिक्री और ऑर्डर इन जनरल सेंस इन रूटीन वर्क जनरली कौन पास करता है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. ये डिक्री वो जजमेंट वाली डिक्री नहीं है, दैट इज डिफरेंट एंड हियर इट इज डिफरेंट. ओके. सो हम इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. हमने अपने डेली लाइफ में अक्सर पाया होगा कि आता है न्यूज़पेपर्स में कि स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो, सेज द डीएम. तो ये ऑर्डर किसने पास किया? डीएम ने, कि कल स्कूल्स की छुट्टी रहेगी. तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, डीएम ने पास किया है, यानी कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने पास किया है. ठीक है. और एनफोर्स भी होगा, तो दैट विल बी कम इन द क्राइटेरिया ऑफ डिक्री और ऑर्डर. क्लियर. अब आते हैं बाय लॉज पे. बाय लॉ मीन्स कोई भी ऐसा रूल और लॉ जो कि कोई भी लोकल गवर्नमेंट या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए बनाती हो, दैट विल बी कॉल्ड एज बाय लॉज. ठीक है. अब ये देखना होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट या लोकल ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए कोई भी लॉ या रूल बना रही है, तो उस पे उस लॉ या रूल को बनाने की अथॉरिटी होनी चाहिए. और वो अथॉरिटी उसे कहाँ से मिलेगी? हायर अथॉरिटी से. फॉर एग्जाम्पल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक लोकल बॉडी है. ओके. लोकल ऑर्गेनाइजेशन है. अब ये अपनी वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए कोई भी रूल या कोई भी लॉ बना सकती है. ठीक है. लेकिन उसको ये अथॉरिटी कहाँ से मिली हुई है? हायर ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई है, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको ये अथॉरिटी दी हुई है. ठीक है. अब ध्यान में रखने वाली ये बात है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी लॉ या रूल बनाएगी वो सिर्फ उसी पर एप्लीकेबल होगा और किसी चीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा. सो लॉ बेसिकली मीन्स कोई भी ऐसा रूल, रेगुलेशन, एक्ट और ऑर्डर जो कि मेनली कंसर्न किस चीज से हो? इन कंट्रोलिंग एक्टिविटीज of the citizens as well as other persons living inside the territory of the country. मतलब law will tell a person what is legal for them to do and what is not, and thus in this sense it regulates and control their activities. Clear? So ये हो गई law की definition. अब आते हैं कि what is the difference between law and constitutional law. Constitutional law of any country mainly deals with governmental aspect. ठीक है. अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की डेफिनेशन पढ़ी, तो हमने क्या पाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेनली कंसर्न सिर्फ गवर्नमेंटल एस्पेक्ट पर है, यानी कि गवर्नमेंट, उसके ऑर्गन्स, उसके फंक्शंस, उसकी रिलेशनशिप आपस में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेनली इसी एस्पेक्ट पे डील करता है. लेकिन जो अदर लॉज हैं वो स्पेसिफिक चीजों पे डील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट लॉ डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट्स, हिंदू मैरिज एक्ट डील विद द फॉर्मेलिटीज ऑफ हिंदू मैरिज and so on. Clear? So this is the observational difference between definition of constitutional law and a simple law. That's it. And the other basic difference between law and constitutional law is that constitution is the supreme law of the land, while other laws are not supreme. Instead, they are subordinate to constitutional law. And secondly, any other law of the country should not violate any of the provisions of the constitution, otherwise those laws will be held to be void. Yani ki constitution is the supreme law and others law cannot violate and must not violate the provisions of the constitution. So in law, constitution supreme law hai and other laws uske subordinate hai. This is the difference between law and constitutional law. All the topics of this video are now completed. But if there's any question, ask me in the comment section. And if you like what I shared with you, hit the like button. And to stay tuned for my further videos, please subscribe my channel and press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching this video. We'll meet you soon in the next one.